Hello, my dear students of Standard 4th. How are you all? Hope you all are in good health and doing well. Okay, children, today I am here to teach you lesson number 12 of our environmental studies. And what we are going to study about today, that is changing times. So, before we start, let us talk about this. So, children, our country India became independent in 1947. It is due to the great efforts of our freedom fighters and some patriotic leaders as well. So, children, at that time, our country was partitioned into two parts or two countries. One is as India, and the second one is known as Pakistan. So, many people from Pakistan came to India. They lived there, all their properties, their wealth, their houses as well. And here government took some creative and effective steps for them, and they succeed in doing so. Okay. Facilities available today were not available before 70, 80 years ago. Time changes, and now we are living a very facilitated life and very comfortable life. So, children, we have to see through this lesson what are changes came in these years after our independence. Okay, so let us start doing. Chapter number 12, Changing Times. My name is Neela Bhai. This is an old story. I was a young child at that time. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending a retired life. I would like to share my experiences of those days with you. अब यहाँ पे जो नरेटर है, जो बात बता रहे हमको, उनका नाम है नीला भाई. नीला भाई अपनी स्टोरी हमको बता रहे हैं जब वो छोटे थे, जस्ट एज ऑफ योर एज, वो भी जब तुम्हारे एज के थे, वो टाइम की बात हमको बता रहे हैं. नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ. अभी वो उनकी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं. ओके, और वो हमको उनके एक्सपीरियंसेस हमको शेयर कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं. अब बिग मूव क्या हुआ था? What was happened there? That was about 70 years ago. I remember the time when I was 10 years old. नीला भाई 70 years पहले की बात कर रहे हैं, आज से जब वो 9 years के थे. तो 70 years पहले क्या हुआ था वो याद कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं. The time we lived in Tando village of Aliar. कहाँ रहते थे वो? अलियर के टांडो विलेज में वो रहते थे, जो अभी कहाँ पे है? नाउ इट इज इन पाकिस्तान. एट दैट टाइम वी सफर्ड अ लॉट. बहुत सहना पड़ा उनको वो टाइम पे. देयर वाज लॉट ऑफ हस्टल बस्टल. अफरा तफरी हो गई बहुत ज़्यादा. आपने अगर शायद देखा हो तो एक मूवी है गदर, उसमें ये सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया है. इफ यू गेट अ चांस देन प्लीज डू वॉच. देयर वाज लॉट ऑफ हसल बसल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. क्या हुआ था? वो छोटे जो नीला भाई थे वो तो बहुत छोटे थे, 10 years के, उनको कुछ पता चल नहीं रहा था. One day father told us that we had to leave our village and move to another place. एक बार पापा ने क्या बोला कि हमको ये गांव छोड़ के दूसरे जगह जाना है. I was sad to leave my village and my house. हमको अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना. तो सेम थिंग was happening with नीला भाई. नीला भाई को भी बहुत दुख हुआ, वो बहुत दुखी हो गए. That was where I had all my friends. जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जहाँ हम रहते हो पहले से, वो जगह को छोड़ना बहुत ही टफ होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो नीला भाई को भी सेम
उनके साथ भी सेम हुआ, क्योंकि वहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स थे फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड. ओके, we all moved with family members in bullock cart that too snatched at the border. क्या लिखा है कि हम लोग बुलक कार्ट में बैठ के हमारे फैमिली के साथ हम दूसरी जगह जाने को शिफ्ट करने के लिए हम निकले, और हम बुलक कार्ट में बैठ के निकले थे, वो भी वहाँ से बॉर्डर पे जो सीमा थी वहाँ पे बॉर्डर पे वो भी खींच के ले लिया गया. Lastly we reached near धोलावीरा in Kutch at Kutch. लास्ट वो लोग कहाँ पहुँचे? धोलावीरा, कच्छ. अगर आपको पता हो चिल्ड्रन, तो धोलावीरा is a place, Kutch is a district of Gujarat that shares its boundary with Pakistan to its northwest. नॉर्थवेस्ट में पाकिस्तान से कच्छ डिस्ट्रिक्ट अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है. Many people from our area also moved. उनके साथ दूसरे भी लोग थे जो उनके आसपास में रहते थे, उनके एरिया के लोग. They also were shifting. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. I told you before that what happened that time? The country India partitioned into two countries. One is India and the second country is Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. Many people from India went to Pakistan. कई लोग जिस तरह से नीला भाई और उनकी फैमिली इंडिया में आए, सेम लाइक दैट यहाँ से कई लोग कहाँ गए? पाकिस्तान गए. For some time we all stayed in a camp in big tents that were put up in a huge ground of धोलावीरा. धोलावीरा के बड़े ग्राउंड में टेंट लगाए गए थे. What is a tent? Tent is a permanent house. It is not so tent is a permanent house. It was provided to them. For some time we all stayed in a camp in big tents that were put up in a huge ground of धोलावीरा. ऐसे कई टेंट्स थे जो धोलावीरा के ग्राउंड में लगाए गए थे, और जिसमें ये जो लोग यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होके आए थे, they were lived there. A new home. One day father told us that we had been given some land in Kharcharia village, Jairam Nagar. He said that we could build our house there. I was very happy. Father and mother worked hard to make the house. We children also helped. Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. Sister and mother mixed husk in it. Father constructed the walls. What happened here? अब यहाँ क्या हुआ? So one day father told, पापा ने बताया कि उनको जमीन दी गई है, गवर्नमेंट ने जमीन दी है. कहाँ पे? खरचारिया विलेज जो जयराम नगर में है. और उन्होंने क्या बोला कि हम वहाँ पे हमारा नया घर बनाएंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. हाँ, खुद का घर हो, अपना घर, तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेजर. वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है. तो यहाँ पे जो नीला भाई है उनको भी बहुत ही खुशी हुई कि हम फाइनली हम अपने घर में जाएंगे. फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. और वो टाइम पे कोई नावडेज जिस तरह से अभी हम घर बनाते हैं तो मेसन है और कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्चर है, वैसा कुछ भी नहीं था. बराबर. तो कौन घर बनाने वाला था? नीला भाई फादर एंड मदर. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. बच्चों ने भी घर बनाने में हेल्प की. फादर dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. पापा क्या करते थे? वो जमीन को खोदते थे और हम जल्दी से वो भर के मम्मी को देते थे, और मम्मी और सिस्टर मिलके क्या बनाते थे? उसमें हस्क मिक्स करते थे. फादर कंस्ट्रक्ट, और फादर वो हस्क से
वॉल बनाते थे. We brought cow dung from nearby houses. आजू बाजू के जो घर थे जहाँ पे कैटल रेयरिंग करते थे लोग, तो वहाँ से वो क्या कलेक्ट करके लाते थे, वो काव डंग कलेक्ट करके लाते थे. She used, mother mixed it with the mud and coated the floor. मम्मी क्या करती थी, मड के साथ जो सैंड होती है उसके साथ पानी को मिला के जो मिक्सचर तैयार करते थे, दैट इज कॉल्ड मड. और उसके अंदर वो क्या मिलाते थे मम्मी, काव डंग, गोबर बोलते हैं जिसको, वो मिला के मम्मी क्या करते थे, फ्लोर को कोजे. आजकल हम फ्लोरिंग किससे करते हैं, टाइल्स से. डिफरेंट डिजाइन एंड कलरफुल टाइल्स आर अवेलेबल इन मार्केट एंड ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो एट दैट टाइम what people were doing, they were making the floor by this kind of coating. She used to say coating floor by this mixture would keep the insects away. मम्मी क्या बोलती थी, माँ क्या बोलती थी नीला भाई की, कि इस तरह से जो फ्लोर को कोटिंग करते हैं इस तरह से, उससे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, दूर रहते हैं. Now it was a turn for the roof to be made. दीवार बन गई और नीचे का फ्लोरिंग भी हो गया. Now it was time to make the roof. It was the turn for the roof to be made. Father made a frame by joining the branches of neem trees and bamboos. पापा ने क्या बनाया, आजकल भी जब हम पक्का हाउस बनाते हैं, this was कच्चा हाउस मेड बाय नीला भाई पेरेंट्स. जो नीला भाई के पेरेंट्स बना रहे थे वो कच्चा हाउस है. बट नाउअडेज हम जो पक्का हाउस बनाते हैं, तो जब हम रूफ बनाते हैं तो आप हैव यू ऑब्जर्व्ड और वॉच व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर मेकिंग, कैसे बनाते हैं पता है, वो छत कैसे बनाते हैं, दे आर यूजिंग व्हाट दे आर यूजिंग, हैव यू सीन, आयरन रॉड्स, है ना, आयरन रॉड्स यूज करते हैं, लोहे के सरिये यूज करते हैं, और फिर उससे पूरा एक फ्रेम बनाते हैं. एंड देन दे आर यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्क्रीट, सीमेंट एंड सैंड इन इट एंड दे आर मेकिंग द रूफ. तो नीला भाई के फादर ने क्या किया, बाम्बू और नीम की जो वुड था, स्टिक्स थी, उसको यूज किया और उसको जॉइन करके वो रूफ पे डाला. We put old gunny bags on that and covered them with mud. और बच्चों ने क्या किया, जो पुरानी गनी बैग्स, आपको पता होगा वो जूट बैग होती है ना, जिसमें पहले के टाइम में when we were very young as you, तो वो टाइम पे जो ग्रेन्स है, सीरियल्स, वो जब लाते थे, चावल है, गेहूँ है, they were using gunny bags. वो गनी बैग्स यूज करते थे. तो उस तरह के जूट बैग्स, वो तो वैसे जूट बैग्स बच्चे लेके आए और फिर उसको कवर, उसको वो जो फ्रेम बनाया था पापा ने, पिताजी ने नीला भाई के, उसके ऊपर डाला और उसके अंदर उसको किससे फिलअप कर दिया, मड से. Most of the houses around our house were made like ours. Most of the houses, ऐसे लोग जो नीला भाई की तरह, नीला भाई के पेरेंट्स के फैमिली की तरह, जैसे जो लोग उनके तरह आए थे वहाँ से पाकिस्तान से, तो वो लोगों ने भी अपना अपना घर इस तरह से ही बनाया. The same material were used by them. It was just like our old house. I liked it the most. अब नीला भाई को वही फीलिंग आई जो उनका पुराना घर था पाकिस्तान में, वही फीलिंग उनको आई क्योंकि वो ऐसा ही था, वही मटेरियल से वो बनाया गया था. Find out and write. Talk of any one of the elderly person of village. आपके घर में कोई elderly person हो तो आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है कि पहले के घर कैसे बनाए जाते थे. Visit him her and find out when she was 8 or 9 years old. तो visit him her and find out when he was 8 or 9 years old. जब वो 8-9 साल के थे तब वो कैसे घर में रहते थे, वो आपको पूछना है.
What were his her experiences and write them. उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, तो उनको आपको लिखना है. जनरली आपको आपके घर में अगर एल्डर पर्सन हो गए तो वो बोलते होंगे नहीं हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, हमारे ज़माने में तो वैसा नहीं था, है ना, ऐसा बोलते होंगे, है ना. तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज टाइम चेंज. टाइम क्या है? इट इज़ ऑलवेज चेंज, कीप ऑन चेंजिंग. हमेशा वो चेंज होता रहता है और हमको भी उसके साथ जीना चाहिए. Where did she or he live? Name that place. अब आपको जो एल्डरली पर्सन की विजिट करते हो उनको पूछना है कि वो कहाँ रहते थे, उस जगह का नाम लिखना है. From what material was her or his house made? कैसे मटेरियल से उसका घर बनाया हुआ था. Okay? Did they have a toilet in their house? If no, where was it? अगर उनके घर टॉयलेट था उनके घर में और अगर नहीं था तो वो फिर वो कहाँ जाते थे. In which part of the house food was cooked? घर के कौन से पार्ट में खाना बनाया जाता था, चूल्हा कहाँ होता था. A lot of mud was used when नीलाबाई's house was made. Why? बहुत सारा मड नीलाबाई के घर बनाने के लिए यूज हुआ. क्यों? तो वो टाइम पे सीमेंट और कंक्रीट और वो सब यूज नहीं करते थे. इट वॉज नॉट इन यूज एट दैट टाइम टू मेक हाउस. और नीलाबाई का जो घर है इट वॉज अ कच्चा हाउस, वो कच्चा हाउस था, इसलिए उसमें क्या यूज हुआ है? मड यूज हुआ है. चेंजेस इन द हाउस. टाइम पास क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल. अब क्या हुआ? धीरे धीरे टाइम पास होता गया और वो लोग काम करते गए और सेटल होते गए. मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ. अब पापा और मम्मी चाहते थे कि मेरी शादी हो, नीलाबाई की शादी हो. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. नीलाबाई को लगा कि मेरी शादी हो उससे पहले घर क्या करना चाहिए, घर को रिपेयर करना चाहिए और एक और रूम बनाना चाहिए, क्योंकि अब एक इंसान बढ़ेगा तो फिर ऐसी ज़रूरतें भी बढ़ेगी, हो ना, है ना. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर. वो टाइम में सिटीज़ में क्या यूज़ होता था? घर बनाने के लिए सीमेंट यूज़ होता था और लोग ऐसा बोलते थे कि सीमेंट से घर पक्का बनता है, ज़्यादा मजबूत होता है. वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट. हमको भी लगा कि हमको सीमेंट यूज़ करना चाहिए. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. हमने आयरन और सीमेंट दोनों यूज़ किया हमारा नए घर की छत, नए रूम की छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स. बेला अनबेक्ड ब्रिक्स. आजकल जो ब्रिक्स है दे आर बेक्ड. ब्रिक्स को जब कच्ची होती है तो उसको क्या करते हैं? दे आर बेक्ड. उसको बेक किया जाता है. ओके, सो वो टाइम में जो ब्रिक्स थी दे वर नॉट बेक्ड, दे वर अनबेक्ड और उसको बेला बोला जाता था. वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. वो मार्केट में मिलती थी. वी मेड द वॉल्स विथ देम. तो नीला भाई ने क्या किया? उससे वो नए रूम की दीवारें बनाई. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. ब्रिक्स का यूज करना वो बेनिफिशियल है, वो फायदेमंद होता है. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. अब उनको जो वॉल है उसको कोट करने की जरूरत नहीं थी. वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स. साल में एक बार उसके ऊपर वाइट वॉश मतलब कि चूना लगाते थे. वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड में उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा किचन भी बना दिया. द किचन हैड अ मड चूल्हा. किचन में क्या था? मड मतलब कि मिट्टी का बना हुआ चूल्हा था. एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. और ऐसी भी थोड़ी जगह बनाई जिसके अंदर वेसल्स को रखा जाए. यू कैन सी इट ऑन द पेज नंबर 95. कैन यू? यस, ओके. Then I got married and my wife came to our new house. बाद में मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ है वो नए घर में आई. To cook she used to sit on the floor in the kitchen. खाना पकाने के लिए वो कहाँ बैठती थी? किचन में, फ्लोर पे, जमीन पे नीचे बैठती थी.
We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. हम भी क्या करते थे, मैट्स पे बैठते थे, जहाँ मेरी वाइफ खाना पकाती थी वहाँ पे हम मैट्स पे बैठते थे और वहाँ पे खाना खाते थे. और वो टाइम को याद करके नीला भाई क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज हैप्पी टाइम, बहुत ही खुशी का टाइम था वो. Some people used to go out to field for toilet in those days. कई लोग क्या करते थे, टॉयलेट के लिए कहाँ जाते थे, बाहर खुली जगह में जाते थे. Some of the houses had a separate place for this. कई घरों में इसके लिए सेपरेट जगह थी. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. नीला भाई ने भी घर के पीछे जगह थी, वहाँ पे क्या किया, अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज करके वहाँ पे टॉयलेट बनाया. मोर चेंजेस, अब क्या हुआ देखते हैं. मोर चेंजेस, माई 7 sons had a daughter were born in that house. जहाँ पे उनकी शादी हुई, जो घर को उन्होंने कच्ची ब्रिक्स और सीमेंट यूज करके बनाया था, वहाँ पे उनके 7 sons और 1 daughter, उनका जन्म वही घर में हुआ. टाइम पास्ट, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड their studies. समय बीतता गया और उनके बच्चों की भी पढ़ाई खत्म हो गई. 20 years ago, our daughter Zamim got married and moved to Rafu village. अब क्या हुआ, उनकी लड़की जामी थी, उसकी शादी हो गई और वो दूसरे गांव में, दूसरे राफू नाम के गांव में वो शादी करके चली गई. When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride. उनको भी लगा कि अब लाखा की शादी करने का उन्होंने डिसाइड किया. लाखा, हु वाज लाखा? लाखा वाज नीला भाई सन, नीला भाई का बेटा था. तो जब लाखा की शादी हुई तो उनको ऐसा फील हुआ कि वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. जो नई ब्राइड आने वाली है, नई दुल्हन आने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक घर बनाना चाहिए. क्योंकि ऑलरेडी नीला भाई को कितने चिल्ड्रन थे, 7 sons and 1 daughter, so 8 and 2 parents, 10. ओके, उसमें जो लड़की थी उसकी शादी हो गई. बट क्या हुआ है यहाँ पे, नीला भाई के जो लड़का है लाखा, उनकी शादी हुई और इसलिए they need of a new house. By then everyone was using baked bricks. अब क्या हुआ, जब नीला भाई की शादी हुई थी तब क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, bricks, but they were unbaked. Now at the time of Neela Bhai's sons Lakha Bhai's marriage, what happened, क्या, what was there in the use, baked bricks. Okay, what were introduced. We also use them for the walls and instead of bamboo and roof tiles we use iron, grit gravel and cement for a strong roof. So we also use them for the walls and instead of bamboo and roof tiles. तो ये लोगों ने भी वो ब्रिक्स यूज की और बाम्बू की जगह पे रूफ टाइल्स यूज किए. वो रूफ टाइल्स क्या होता है, वो जो छत बनाने के रूफ के लिए यूज करते हैं ना, सीमेंट से बना हुआ. वी यूज एंड रूफ, वी यूज आयरन, ग्रीट ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ. रूफ के लिए क्या यूज किया, आयरन. मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से दे आर यूजिंग आयरन रॉड्स एंड दे आर मेक अ फ्रेम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रूफ. रूफ के साइज का वो लोग फ्रेम बनाते हैं. और अब ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो सीमेंट है एंड कंक्रीट है और वो सब जो मिक्सचर है, दे आर पुटिंग इन दैट एंड दिस वे. सो व्हाट वाज हैपनिंग हियर, तो पहले जब नीला भाई की शादी हुई थी तो क्या क्या हुआ था, उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की थी और घर एक रूम बनाया था. अब जब नीला भाई के साथ लाखा भाई की शादी हो रही तो क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने बेक्ड ब्रिक जो अब मार्केट में अवेलेबल है, दे वर यूजिंग दैट. और जो छत है उसके लिए उन्होंने बाम्बू और रूफ टाइल्स की जगह पे क्या यूज़ किया है, आयरन, ग्रीट ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ. स्ट्रॉन्ग रूफ की जगह पे वो यूज़ किया है.
In the toilets we put pipes to take away the waste. टॉयलेट में क्या किया है, उन्होंने पाइप्स लगाई है जिससे कि जो टॉयलेट वेस्ट है इट मूव्स आउट. ओके. द किचन वॉज मेड बिगर. अब किचन बड़ा हो गया है. नाउ लाखा's वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली. अब लाखा भाई की वाइफ है वो रेयरली मड चूल्हा यूज करती है बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव. बिकॉज अब उसकी जगह किसने ले ली है, तो मड इंस्टेड ऑफ मड चूल्हा व्हाट शी इज यूजिंग मोस्ट, तो गैस स्टोव. ओके. Seeing new things. My grandson is now living separately and build his new house. अब लाखा भाई सॉरी नीला भाई है, उनके ग्रैंडसन की बात है. लाखा भाई वॉज नीला भाई सन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडसन. तो लाखा भाई के लड़के की बात कर रहे हैं अभी हम. माई ग्रैंडसन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस. अब नीला भाई के जो ग्रैंडसन है उन्होंने नया घर बनाया है और वो नए घर में रहते हैं अकेले. ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी. उनको शॉपिंग करने के लिए सिटी में जाना पड़ता है. देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज. वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ऊंची है. मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड देयर. बहुत सारे टाइप्स की फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है. ही इज द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन. वो आज के जनरेशन का उनका ग्रैंडसन है. ही इज ऑफ दिस जनरेशन, ये जनरेशन से बिलोंग करते हैं. ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, किचन एटसेट्रा which we find difficult to build up. क्या कर रहे हैं वो, तो उन्होंने जो घर बनाया है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, टॉयलेट्स है, किचन है और एटसेट्रा विच वी फाइंड, और सेपरेट रूम्स भी है. ओके. विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप. जो उनके टाइम में मुश्किल था नीला भाई स्टेलिंग के, उनके टाइम में इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल था. Few years ago, लाखा renovated the toilet and bathroom. थोड़े years पहले लाखा भाई ने क्या किया, अपना जो बाथरूम है और वो टॉयलेट रिनोवेट किया. He used colored tiles in his bathroom. क्या किया उन्होंने, नए colored tiles लगवाए. Imagine spending so much money for a place to have a bath. अभी नीला भाई उनके विचार से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि स्पेंडिंग, इमेजिन, सोचो कि नहाने की जगह के लिए, नहाने के लिए इतने सारे रुपए खर्च करने के. आई एम नाउ 80 years old. नीला भाई इज नाउ 80 years old. इन ऑल दिस years आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस. इतने सारे सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. इवन इन माई ओन हाउस, वो उनके खुद के घर में उन्होंने इतने सारे चेंजेस देखे हैं. आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ द हाउस विल बी. मुझे पता नहीं है कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कहाँ रहेंगे और कैसे घर बनाएंगे. What are the houses like in Aliya Tando village today? जो अलिया टांडो में उनका जो घर था, जो वो छोड़ के आए थे पाकिस्तान में, तो वैसे घरों का आज क्या हुआ है होगा. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड ऑल फ्रेंड्स बी नाउ. और मुझे वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो वो पुराने दोस्त है जिसको मैं छोड़ के आया था वहाँ पे, वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे अभी. विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. आपके घर बनाने में कैसा मटेरियल यूज हुआ है, तो ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रीट, ये सब तो यूज हुआ ही होगा, है ना. तो ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रीट, टाइल्स, ग्लास, वुड एटसेट्रा आर द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड our house या my house. Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पर मेनली जो मटेरियल्स है तो वो वही के वही होते हैं. ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन, टाइल्स, है ना. इम्पोर्टेड रूफ होगा. कई तरह की वैरायटीज आती है कई चीज़ों में, तो शायद वो चेंज हो. ओके. जैसे टैप है तो स्टील के टैप भी आते हैं और ब्रास के टैप भी आते हैं और प्लास्टिक के टैप्स भी आते हैं. और वुड भी कई अलग अलग वुड्स यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए. सो चेंजेस में
So these changes may happen in your and your friend's house. What kind of house do you think नीलाबाई's grandchildren will live in? आपको क्या लगता है कि नीलाबाई के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो किस तरह के घर में रहते होंगे? तो ड्यू टू चेंजिंग टाइम्स नीलाबाई's ग्रैंड चिल्ड्रन, देखो पहले लेट अस सी फ्रॉम द बिगिनिंग. जैसे नीलाबाई है वो उन्होंने शादी की तो उन्होंने क्या यूज़ किया था? यस, अनबेक्ड ब्रिक्स. देन लाखाबाई की शादी हुई तो उन्होंने क्या यूज़ किया? बेक्ड ब्रिक्स एंड सीमेंट एज वेल. बराबर. अब नीलाबाई के ग्रैंडसन है वो क्या यूज़ कर सकते हैं? सो नीलाबाई's ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंडसन विल यूज ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन, है ना, देन ग्लास, वुड. So this to rebuild their house. Thus in modern times, Neelabai's grandchildren will also live in large house or bungalows. Okay. So let us do the next question. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? अब आप जब बड़े होंगे तो आप कैसे घर में, आप बोलते होंगे ना आपके मम्मी पापा को, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मैं वैसा घर बनाऊंगा, है ना. तो आप कैसे घर में रहोगे कि आपको कैसे घर में रहना पसंद होगा. तो व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू लिव इन अ सिटी में रहना पसंद है क्योंकि सारे फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन सिटीज. आई वुड लाइक टू लिव इन इंडिपेंडेंट बंगलो, है ना, इंडिपेंडेंट बंगलो के मैं ही रहता हूँ आस पास में, मतलब कि खुली जगह हो, है ना, गार्डन हो. तो दिस इज योर ड्रीम बंगलो और ड्रीम हाउस, और जो मॉडर्न वे से बना हुआ हो. ओके. यू हैव रिटन अबाउट द मटेरियल्स दैट योर ग्रैंडपेरेंट्स हाउस वाज मेड ऑफ. हैज सम ऑफ दोज मटेरियल्स बीन यूज्ड इन योर हाउस? नेम देम. हाँ, तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर में क्या यूज हुआ था? ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड. तो हमारे घर में भी ऐसी, आपके घर जो घर बना है अभी जो आपका घर है उसमें भी सेम थिंग्स यूज हुई होगी. इट माइट यूज इन योर होम्स एज वेल. तो ब्रिक, सीमेंट है, सैंड, ग्रीट, है ना, वुड एंड आयरन एटसेट्रा. पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. जो काम जो करते हैं हम उसको वो नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर. जो इंसान है वो जो वुडन आर्टिकल्स या वुडन फर्नीचर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारपेंटर. इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड? आपके वहाँ पे जो इंसान है जो वुडन आर्टिकल्स बनाता है, वुडन फर्नीचर बनाता है, आप उसको क्या बोलते हैं? कई लोग हम सुथार बोलते हैं या मिस्त्री बोलते हैं, है ना, मिस्त्री बोलते हैं ना. सो हम अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी हैव गिवन डिफरेंट नेम of our helpers. Now on page number 98, look at the picture and fill in the table. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है और ये टेबल दिया है, इसमें देख के हमको ये इसको फिलअप करना है. कैन यू सी on page number 98? What kind of work is being done by different people here? अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं. एक इट कैन बी सीन दैट एक घर बना रहे हैं ना, वन हाउस इज दे आर बिल्डिंग अ हाउस है. ओके. सो विच टूल्स आर पीपल यूजिंग इन द पिक्चर? विच टूल्स दे आर यूजिंग? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग यूज कर रहे हैं? राइट देम इन द गिवन टेबल. वो हमको ये नीचे टेबल में लिखना है. डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? आप ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे काम करते हैं? जब हमारा घर बनता है तो विच आर द पर्सन, विच आर द पीपल हु आर वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ. ओके. कौन से लोग हैं जिसकी हम हेल्प लेते हैं घर बनाने के लिए? विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क. अगर आपके आसपास में ऐसा कोई घर बन रहा हो तो आपको क्या करना है? वहाँ देख के जाना है, देख के देखना है और आपको नोटिस करना है कि विच काइंड ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड व्हाट वर्क दे आर डूइंग एंड विच टूल्स दे आर यूजिंग टू डू देयर वर्क.
So let us start doing. Okay, so first question here. Below the picture we have seen what kind of work is being done by different people here. So different people are doing different type of work here. First, you can see the potter is sitting over there behind that the construction going on. A potter is making various items from clay on his wheel, है ना? Laborers are there. You can see in front. Laborers are mixing sand, cement, and water to make concrete for the building. They are making concrete by mixing the materials like sand, cement, and water. Then a mason is laying and plastering the wall with bricks and concrete. Can you see? A mason is laying and plastering the walls with bricks and concrete. Fourth one, in the front side you can see an electrician is doing some electrical work there. You can see one pipe is there and bulb is there. Fifth one, there also that behind that tank like structure you can see a man standing behind that, and also he is working with pipe. So I think it is a plumber who is fitting various pipes to ensure proper flow of water. Tank is there, so he is connecting the water tank to the pipe. Okay. Now here, which tools are people using in the picture? Write them in the given table. So which tools are they using? So here potter is there who is using wheel. Potter क्या use कर रहा है? Wheel use कर रहा है और वो क्या कर रहा है उससे? Making various things from clay. Clay से मिट्टी से वो अलग अलग चीजें बना रहा है. The second is laborer, spade and tub. उसके पास क्या है? Spade और tub है. वो मिक्स कर रहा है सीमेंट सैंड एंड वाटर कंक्रीट बनाने के लिए. वो क्या कर रहा है? स्पेड और टब से वो जो मिक्सचर है कंक्रीट मिक्सचर वो तैयार कर रहा है. मैसन ट्रॉवेल, मैसन का टूल कौन सा है? मैसन के टूल्स कौन से है? तो उसका ट्रॉवेल है और मैसन्स लेवल. बोथ टूल्स आर यूज्ड बाय अ मैसन. वो क्या करता है? डज द मैसनरी ऑफ द हाउस. हाउस का मैसनरी वर्क करता है. Now you can see the electrician. What are the tools of electrician? Tester, pliers, wire and drill machine. So और वो उससे क्या कर रहा है? Does the electrical work of the house. Plumber also uses pliers, spanners, drill machine. और वो क्या कर रहा है? Fits various types of pipes, taps, etc. Okay. So here below the picture I am reading, do you know people who do this type of work? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं? Obviously visit them and get information about the work. Discuss it with your friends. This you have to do by yourselves. Okay. On page number 98 you can see the heading there. With your teacher or guardian, go to a place where a building is being constructed and give answers to these questions. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके गार्डियन है, आपके बड़े कोई है एल्डर पर्सन, उनके साथ जाके आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है जहाँ पे क्या हो? कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. What is being built? तो I have written according to me, a multi-story building is being constructed there. So मैंने एक साइट को के बारे में लिखा है. तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की साइट है और वहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग हियर देयर? अबाउट 300 पीपल वर्किंग देयर. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग? तो कौन से टाइप का वर्क करते हैं? दे आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. डिफरेंट पीपल आर वर्किंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ओके. So here also different
type of work is going on. So engineer is checking to see if the work is going on according to plan. Masons are doing the work of bricks laying and plastering. Laborers are preparing concrete and reaching it to the top floors with the help of the service lift. At places where masonry is finished, plumbers are fitting pipes and taps to ensure proper flow of water. Electricians are busy with electrical work. Carpenters are making doors and windows and fitting them in their appropriate places. A supervisor is instructing the laborers to be quick in their work. An interior designer is giving instructions for work to be done inside the building. So how many men and women are there? So there are about 220 and 8 men and 80 women. How much money do these people get daily? कितने पैसे मिलते हैं उनको डेली वर्क के लिए? तो मैन और वीमेन के अलग अलग पैसे होते हैं. ओके, दे आर गेटिंग मनी अकॉर्डिंग टू their sex, either male and female. Male person get 400 per day and lady मतलब जो women है they get 250 per day. What are the materials being used for making the building? क्या यूज होता है materials? तो brick, cement, then concrete, grit, iron, wood, okay, are being used to make the building. Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. So my guess is that about 100 trucks of bricks and 5,000 bags of cements will be used for making the building. How do the materials reach the building site? कैसे आता है building site? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पे मटेरियल कौन लेके आता है? तो ट्रक है, हैंडी कार्ट है, आपने देखा होगा कि हाथ से लारी कार्ट खींच के लेके जाते हैं, है ना? तो ये लोग इस तरह से या तो लोडिंग टेम्पो है या लोडिंग रिक्शा है. सो फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट. एक बैग सीमेंट कितने का था? अप्रोक्सीमेटली 450 to 500 रुपीज. 1 brick is cost 5 rupees. 1 truck tractor of sand. सैंड का एक ट्रक या ट्रैक्टर 5,000 rupees. Now on page number 100. Over the 8 years, different materials were used at different times in नीलाभाई's house. List these in the correct order. हमने देखा कि नीलाभाई, then his son लाखाभाई, and then नीलाभाई's grandsons. तो क्या क्या changes आए? We have to write here. First है, what were they using? पहले नीलाभाई के पेरेंट्स से क्या यूज किया? Mud, sawdust, cow dung, neem branch and jute sacks. ओके. सेकंड नंबर, सेकंड में जब नीलाभाई का टाइम आया तब उन्होंने क्या बनाया? जब उनकी वेडिंग हुई तो क्या उन्होंने कैसा घर बनाया, रूम बनाया? तो अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की, सीमेंट और सैंड, आयरन और लाइमस्टोन. देन बेक्ड ब्रिक्स. थर्ड में जब लाखाभाई की शादी हुई तो बेक्ड ब्रिक्स, आयरन, ग्रीट, सीमेंट एंड सैंड. एंड जो लास्ट है द ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो बेक्ड ब्रिक्स, सैंड, आयरन एंड ग्रीट, सीमेंट, मार्बल, कलर्ड टाइल्स. सो children, this was all about the explanation of chapter number 12. Let us start doing our exercise. Chapter 12, changing times. First exercise we are going to see, fill in the blanks. Number 1, Neelabai's father was a dash. Who was Neelabai's father? Farm labor. He was a farm labor. खेत मजदूर थे. Second, नीलाबाई lived in dash 70 years ago. कहाँ रहते थे 70 years ago? In which country? That time it is India only, but now it is Pakistan. So नीलाबाई lived in Pakistan 70 years ago. नीलाबाई lived in dash. कहाँ रहते थे नीलाबाई? नीलाबाई lived in Eliano Tando. Fourth, नीलाबाई built a dash in धोलावीरा, कच्छ to stay with his family. अपने फैमिली के साथ
जब उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया अहमदाबाद, अरे सॉरी इंडिया में, तब उन्होंने, वो कहाँ रहते थे, तो उन्होंने धौलावीरा में, नियर कच्छ, कच्छ में धौलावीरा है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या बनाया वहाँ रहने के लिए उनके पेरेंट्स ने, और उन्होंने एक ग्रास हट विद अ डॉम, ग्रास हट बनाया डॉम, डॉम के साथ। नाउ फिफ्थ वर्ड, नीलाभाई यूज्ड एज टू बिल्ड अ टॉयलेट। नीलाभाई ने किससे टॉयलेट बनाया? अनबेक्ड ब्रिक्स, अनबेक्ड ब्रिक्स। So नीलाभाई used unbaked bricks to build a toilet. 6. नीलाभाई had dash. नीलाभाई को क्या कितने बच्चे थे? 7 sons, 1 daughter. 7 सन थे, 7 बेटे और 1 बेटी। 7. लाखाबाई नीलाभाई डैश। लाखाबाई नीलाभाई के कौन थे? सन। लाखाबाई नीलाभाई सन। 8. लाखाबाई यूज्ड डैश इन बाथरूम। लाखाबाई ने जब बाथरूम बनाया तो उसमें क्या यूज किया? कलर टाइल्स। तो लाखाबाई यूज कलर टाइल्स इन बाथरूम। 5th, 9th, it has fixed pipes and taps. It has fixed pipes and taps. कौन हमारे घर में पाइप और टैप, नल फिट कौन करता है और पाइप फिट करता है? ए प्लम्बर। प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड टैप्स। 10th, it has makes things out of iron. लोहे से कौन चीजें बनाता है? यस, ब्लैक स्मिथ who is working with an iron, with an iron. Blacksmith makes things out of iron. Now, so children, here I have given you one exercise, but for more exercise will be given to you through your PDF. Please learn it well for the upcoming exam. Prepare well, write your all the work in good handwriting, but it wisely you have to write. Okay, thank you children.